اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں بھی آج آپ حضرات کی خدمت میں چند نکات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بے شک ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نبی کا اخلاق کس درجے پر فائز تھا اور کیا عظیم مرتبہ رکھتا تھا۔ دیکھیں، یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ اسلام بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بلکہ بہت مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر کر ہم تک پہنچا ہے، بہت مشکلوں سے گزر کر یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی شخص آج کے دور میں، اس جدید دور میں کوئی نیا ادارہ قائم کرے، کوئی نیا مؤسسہ کھولے اور وہ چاہے کہ یہ ادارہ، یہ مؤسسہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ اس سے جڑ سکیں اور لوگ اس ادارے سے فیض حاصل کر سکیں، تو آج کے اس جدید دور میں بہت سارے انتظامات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ ادارہ نشو و نما پا سکتا ہے، یہ ادارہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلا کوئی ایسی کتاب شائع کی جائے کہ جس کتاب کو لوگ پڑھیں اور اس ادارے کے بارے میں جانیں، یا پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی آڈیو کلپ بنائی جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سنیں اور اس ادارے تک پہنچ سکیں اور اس ادارے سے فیض حاصل کر سکیں۔ لیکن آج کے اس دور میں، جب کہ اتنی تمام تر ترقیاں اور اتنے سارے انتظامات ہیں، کیا سب کے سب ادارے لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں؟ کہا نہیں، سب کے سب ادارے لوگوں تک نہیں پہنچتے، بلکہ بہت سارے ادارے بنتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں، کچھ ایسے بھی مؤسسے ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ ادارے کہاں چلے گئے؟ یہ ادارے ختم کیوں ہو گئے؟ کہا دیکھو، یہ ادارے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے، اس وجہ سے یہ ختم ہو گئے، معدوم ہو گئے۔ تو معلوم ہوا آج کی اس ترقی شدہ دور میں بھی لوگوں تک کسی چیز کو پہنچانا بہت آسان نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، ذرا فکر کیجئے کہ اس دور میں جو زمانہ جاہلیت تھا، جو زمانہ جاہلوں کے نام سے مشہور ہے، کہ جب نبی اس زمانے جاہلیت میں آئے تو ایسا دور تھا کہ لوگ، حد یہ تھی کہ لوگوں کے یہاں جب کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس بچی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ جاہلیت کی حد تھی۔ ایسے زمانے میں جب نبی آئے اور نبی ایک نیا دین لے کر آئے تو ایک چیلنج تھا بہت بڑا کہ آخر اس نئے دین کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، آخر کون سا راستہ اپنایا جائے کہ یہ دین لوگوں تک پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، تو نبی نے جس راستے کو اختیار کیا وہ اخلاق کا راستہ تھا۔ یہ اسلام جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ تلوار کے زور پر نہیں پہنچا، بلکہ اخلاق کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اخلاق ہے، اسلام کی بنیاد تلوار نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی زور زبردستی کے ساتھ کوئی چیز کسی دوسرے تک پہنچائی جائے تو وہ بہت دیر تک باقی نہیں رہتی، بلکہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام چونکہ اخلاق کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے، نبی نے اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ پیش کیا، نبی نے اپنے اخلاق کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ نبی کے عاشق ہو گئے اور نبی کے اس دین کو اپنانے لگے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی پر اتنا ظلم و جور ہوا کہ نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ مکہ چھوڑنے کے بعد نبی مدینے چلے گئے۔ جب نبی نے مکے پر فتح حاصل کر لی تو لوگ سوچ رہے تھے کہ نبی ان لوگوں سے بدلہ لیں گے، نبی
उन लोगों को किस तरह से कत्ल करेंगे, सब लोग ये सोच रहे थे। यहां पर नबी ने अपना इस तरह से इखलाक पेश किया कि तमाम लोग नबी के आशिक हो गए। जहां लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग कि जिन्होंने नबी पर जुल्म सितम ढाए थे, उन लोगों को किस तरह से कत्ल किया जाए, उनसे कैसे बदला लिया जाए, नबी ने अफ़वे आम का ऐलान कर दिया, यानी सबको माफ कर दिया जाए। जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने नबी पर जुल्म सितम किया था, सबको माफ कर दिया गया। तो यह है नबी का अखलाक। क्या आज कोई ऐसा कर सकता है कि किसी शख्स का बहुत बड़ा दुश्मन, चूंकि दुश्मन हमेशा अपने शबाब पर नहीं रहता, एक वक्त वो आता है कि जब दुश्मन नातवा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो क्या कोई आज ऐसा कर सकता है कि अपने दुश्मन को माफ कर दे, ऐसे दुश्मन को कि जिसने उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था? नबी ने ऐसे अखलाक को पेश किया। नाज़रीन इकराम, यही अखलाक था नबी का कि जिसकी वजह से इस्लाम परवान चढ़ा और इस्लाम हम तक पहुंचा। इस्लाम बहुत सौबतों से हम तक पहुंचा है। आजकल का इंसान जो मुस्लिम है, अपने आप को मुसलमान कहता है, आजकल इस्लाम को अपनाना बहुत आसान है। आज जो हमारे सामने मुसलमान हैं, या तो वो ऐसे मुसलमान हैं कि जिनके आबाओ अजदाद मुस्लिम थे तो लिहाजा वो भी मुस्लिम हैं, या फिर ऐसे मुस्लिम हैं कि जिन लोगों ने तहकीक की है, पढ़ा है, उसके बाद जो है वो इस्लाम को अपनाए हैं, इस्लाम को इख्तियार किया है, इस मजहब को हासिल किया है। लेकिन उस दौर में किताबें नहीं थी, उस दौर में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो इस्लाम को लोग अपना पाते। तो आखिर किस तरह से उन तक इस्लाम पहुंचा? नबी के अखलाक के जरिए। नबी का इखलाक ही था कि जिसने इस इस्लाम को परवान चढ़ाया। एक बहुत खूबसूरत वाकया मैं आपके सामने पेश करूं। देखें, इस्लाम नबी के इखलाक के जरिए से फैला है, तो लिहाजा वो शख्स भी कि जिसने आज तक नबी को नहीं देखा था, वो भी नबी पर ईमान रखता था, वो भी नबी की सदाकत की गवाही देता था कि नबी एक सच्चे इंसान है, एक बाअखलाक इंसान है। वो भी इस चीज की गवाही देता था। एक आराबी शख्स, आराबी कहते हैं कि जो अरब के किसी देहात, किसी गांव का रहने वाला होता है, उसे आराबी कहते हैं। तो एक गांव में रहने वाला शख्स एक मर्तबा मक्के आता है और तवाफ़े काबा में मशगूल होता है। वो जब तवाफ़े काबा कर रहा होता है, उसके पीछे पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे होते हैं, और वो अराबी तवाफ करते करते कुछ पढ़ रहा होता है। वो तवाफ करते करते या करीम कह रहा होता है। तो नबी जैसे ही या करीम सुनते हैं, फौरन उसके पीछे दोहराते हैं या करीम। जब नबी उसके पीछे पीछे या करीम की तिलावत करते हैं, या करीम कहते हैं, वो आराबी शख्स नबी को देखता है, अब फिर अपने तवाफ में मशगूल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो आराबी कहता है या करीम। अब जैसे ही नबी सुनते हैं, दोबारा से नबी उसके पीछे दोहराते हैं या करीम। अब जब उस शख्स ने देखा कि मेरे पीछे कोई शख्स है कि जो मेरे कलिमात को दोहरा रहा है, वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, चूंकि मैं आराबी हूं? वो कहता है, ऐ खूबसूरत चेहरे वाले, ऐ कदो कामत शख्स, क्या तुम मेरा इस वजह से मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं एक आराबी हूं, कि मैं एक गांव का रहने वाला हूं? वो आगे कहता है कि ऐ शख्स, अगर तुम्हारा चेहरा खूबसूरत ना होता, हशाशो बशाश ना होता, और तुम खुशकामत ना होते, तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने नबी से करता, अपने रसूल से करता। फतबस्समन नबी, नबी मुस्कुराने लगे और नबी ने फरमाया, ऐ आराबी, क्या तुम अपने नबी को नहीं पहचानते? क्या तुमने कभी अपने नबी को नहीं देखा?
आराबी ने कहा, नहीं, मैंने कभी अपने नबी को नहीं देखा। नबी ने कहा, तो फिर तुम कैसे अपने नबी पर ईमान रखते हो जबकि तुमने अपने नबी को नहीं देखा? आराबी क्या कहता है, आराबी का जुमला सुनिएगा। आराबी कहता है, आमन तो बेनबुव्वतिही वलम अरा, मैं अपने नबी पर ईमान रखता हूं जबकि मैंने अपने नबी को नहीं देखा। वसद्दक़्तु बिरिसालतिही, और मैं अपने नबी की रिसालत की तस्दीक करता हूं जबकि मैंने कभी नबी से मुलाकात नहीं की। पस नबी ने फरमाया, या आराबी इल्म इन्नी नबीयुक, ऐ आराबी जान लो बेशक मैं तुम्हारा नबी हूं और आखिरत में मैं तुम्हारा शफी हूं, मैं तुम्हारी शफाअत करने वाला हूं। अब जैसे ही उस आराबी ने देखा कि वो नबी कि जिनका मैं आशिक हूं और जिन पर मैं ईमान लेकर आया हूं वो मेरे सामने खड़े हैं, फौरन नबी के सामने झुक गया और नबी के हाथ को चूमने लगा। बस एक मर्तबा नबी ने उसको रोका और फरमाया, ऐ आराबी रुक जा, तू ऐसा ना कर कि जिस तरह से आजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं, यानी वो बादशाहों के हाथ चूमते हैं, उनके सामने झुकते हैं। ऐ आराबी, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे तकब्बुर और तशद्दुद के लिए मबूस नहीं किया, बल बाअसनी बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, बल्कि अल्लाह ने मुझे बशारत देने के लिए मबूस किया है। बस इस मौके पर जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अस्सलामु यक़रउकस्सलाम, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है। और जनाब जिब्राईल ने फरमाया, ऐ नबी अल्लाह, इस आराबी से कह दो कि हमारे हिल्म, हमारी बुर्दबारी से धोखा न खाना, हमारे करम से धोखा न खाना, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मुहासिबा करने वाला है, यानी कल अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला है। जो तुमने गुनाह किए हैं, चाहे वो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, यहां तक कि एक खजूर की गुठली पर जो छोटा सा छिलका रहता है उसकी बराबर ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। यानी क्या? यानी अल्लाह कहना ही चाहता है कि देखो, बेशक नबी ने अपने इखलाक को जाहिर किया और उससे हाथ चूमने को, हाथ का बोसा लेने को मना किया और ऐसा काम, ऐसा अमल अंजाम देने से मना किया कि जो लोग बड़े बड़े बादशाहों के साथ करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा, देखो, इस बुर्दबारी, इस करम से धोखा ना खाना। ये मत सोचना कि कल अल्लाह तुमसे हिसाब किताब नहीं लेगा, बल्कि अल्लाह तुमसे हिसाब किताब लेने वाला है। अब जैसे ही आराबी ने सुना कि अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा, फौरन नबी से कहा, या नबी अल्लाह, क्या अल्लाह मुझसे हिसाब किताब लेगा? कहाँ? अल्लाह तुमसे तुम्हारा हिसाब किताब लेगा तुम्हारे आमाल पर, जिन आमाल को तुमने अंजाम दिया है। फौरन उस आराबी ने कहा, व इज्जतिही व जलालिही इन हासबनी लउहासिबन्नहु, अल्लाह की इज्जत व जलालत की कसम, अगर अल्लाह मेरा हिसाब किताब लेगा तो मैं अल्लाह का हिसाब किताब लूंगा। फौरन नबी ने उस आराबी से पूछा, ए आराबी, तुम किस चीज पर अल्लाह का हिसाब लोगे? तो उस आराबी ने कहा, ए नबी अल्लाह, अगर अल्लाह मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी मगफिरत का हिसाब लूंगा, अगर अल्लाह मेरी मासियत का हिसाब लेगा तो मैं उसके अफ़्व का हिसाब लूंगा। ए नबी, अगर अल्लाह मेरी कंजूसी का हिसाब लेगा तो मैं उसके करम का हिसाब लूंगा। बस नबी गिरिया फरमाने लगे, यहां तक कि आपकी रीश मुबारक तर हो गई। फौरन जनाब जिब्राईल हाजिर हुए और नबी से कहा, ए नबी अल्लाह, अपने गिरिये को कम कीजिए और इस आराबी से कहिए कि अल्लाह तुम्हारा हिसाब किताब नहीं लेगा और तुम भी अपने खुदा का हिसाब किताब मत लेना और तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। तो आपने देखा कि वो शख्स कि जो नबी को नहीं पहचानता था, जिसने नबी को देखा भी नहीं था, वो शख्स नबी पर ईमान लेकर आया है।
جس نے نبی سے آج تک ملاقات نہیں کی تھی، وہ شخص نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اور نبی کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی سے ملاقات نہیں کی، جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں اور نبی کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ کیوں؟ صرف نبی کے اخلاق کی وجہ سے۔ ایسا اخلاق لوگوں کے سامنے نبی نے رکھا تھا کہ تمام لوگ نبی کے عاشق ہو گئے تھے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔